Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 14. Our chapter name is Electric Current and its Effect. Okay. In this chapter, we discuss what is electric current and second one is what is electric circuit. Next, we also understand in this chapter symbols of electric component. Okay. And then after we discuss about the heating effect of electric current, then electric fuse, and now second point is magnetic effect of electric current और magnetic field के according या magnetic effect के according to instruments है जो electromagnet and electric belt how they work properly. We discuss all about this chapter. Okay, in this chapter we start what is electric current. Okay, so what is electric current? When electric current is a form of energy, it's flow of energy, just like a solar energy, heat energy, just like that. Electric current is a flow of electrical energy. इसके अंदर electrical energy जब flow होती है, then electric current flow होता है. Okay, so we see electric appliances around us, so many, just like a light, fan, television, computer, laptop, your mobile also. So all these electric appliances work when electric current passes through them. ये सब electric appliances से कब work करते हैं जब इनके अंदर से electric current pass through हो रहा होता है. अगर electric cut कर दी जाए तो laptop work नहीं करेगा, हमारा PC work नहीं करेगा, and fan work नहीं करेगा. Okay, तो ये all are the electric appliances when electric current pass through them. They all have electric circuit through which electric current pass. ये सब क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से पास होते हुए इलेक्ट्रिक करंट पास होगा. If for some reason for the electric circuit break down the appliances for stop working. अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास होने का या इलेक्ट्रिक सर्किट जो पूरा है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे then no appliances work properly. Okay, in this chapter we will study about the electric current, electric circuit and heating effect of electric current, and also we understand the electric fuse. Okay, now here you understand about the electric current and which appliances use this electric current. Okay, so you might have tried the game how study is your hand suggested in chapter 12 of class 6. आपने class 6 में ये वाला किया है. If not, you have tried to out now. Paheli and Bujo had also set up the game connecting the electric circuit suggested in class 6. They had a lot of fun trying it on their families and friends. They enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin to their stayed in a different town. देखिए आपके class 6 के अंदर भी electric current chapter था. आपको याद आ रहा है कि वहां पे अपन ने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में रीड किया था. देन वी डिस्कस अबाउट द कंडक्टर, देन वी डिस्कस अबाउट द इंसुलेटर. तो व्हाट इज कंडक्टर? दोस मटेरियल व्हिच अलाउ to pass through the electricity. Okay, or what is insulator? Those material which do not allow the electricity to pass through them. अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, that are called a insulator. और जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर. ओके, तो ये जो यहाँ पर 14.1 में जो गेम दिखाया हुआ है यही गेम हमने क्लास 6 के अंदर हमने बात की थी इस एक्टिविटी के रिगार्डिंग. यहाँ पर जहां पर आपको की दिखाई दे रही है यानी चाबी जो दिखाई दे रही की दिखाई दे रही है आपको, ये इस की जगह पर हम डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करें. मे बी मैं आपको वुडन यूज कर सकती हूँ, प्लास्टिक यूज कर सकती हूँ, की मे बी नेल यूज कर सकती हूँ. मीन्स कुछ सम एग्जांपल्स वी यूज हियर conductor, some example we use here insulator. Okay, and we noted down that which situation the bulb glow. कौन सी situation होगी जब bulb glow होगा. तो हम when we do this practical we understand about the when we connect the conductor the bulb will be glow. तो bulb क्या होगा? glow होगा. Okay, तो ये जो पूरी एक्टिविटी है जो यहाँ पर पहली जो लड़की बताई हुई है वो क्या करती है, इस एक्टिविटी को करती है, वो अपने कजन के साथ में इस एक्टिविटी को शेयर करना चाहती है कि भाई मैंने क्या क्या किया, कैसे बल्ब ग्लो हुआ. तो पूरे चीज का डायग्राम बनाना चाहती है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन सर्किट. क्या बोलेंगे? सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन भी आपके क्लास 6 के अंदर आई थी, आपको याद होगा. So what is electricity? The path along the with an electric current can flow is called an electric circuit. एक ऐसा पाथ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पूरा फ्लो हो रहा होता है. ठीक है, जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर सेल है, ये नेल्स हैं, तो कुछ कंडक्टर है.
तो सपोज करते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से ट्रांसफर होते होते होते, ये की क्या है, कंडक्टर है, देन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर इनटू द की, एंड देन इस वायर से होते हुए कहां पर पहुंची बेटा, बल्ब तक पहुंची। तो ये जो पूरा पाथ है वायर्स का या कंडक्टर्स का, की का एंड सेफ्टी पिन, ये जो पूरा पाथ बना हुआ है, इस पूरे पाथ को हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो कौन सा पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पूरे तरीके से फ्लो हो रहा है, दैट पाथ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो पहेली चाह रही थी कि पूरा जो सर्किट उसने बनाया है ना, उसको ड्रॉ करके अपने कजन ब्रदर को बताए। It made Buzo wonder if there was easier way to represent that electric component. क्या कोई easier way है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को यूज करने का? देखिए हमने यहाँ पर रीड किया, सबसे पहले हमें क्लियर हो गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। आई सेड द इलेक्ट्रिक करंट क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब आपकी बुक में बताया हुआ है कि क्लास 6 में हमने ये सिंपल सी एक्टिविटी की थी, देन वी अंडरस्टैंड दैट। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक करंट किसी भी डिवाइस में से पास थ्रू होगा, देन वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क करेगा एंड प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उससे क्या प्रोड्यूस होने लग जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने लग जाती है। जस्ट लाइक जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू अ लाइट एनर्जी। ठीक है, आपकी क्लास 8 में जाओगे, एक एनर्जी का चैप्टर आएगा, वहां पर भी हम ये रीड करते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म क्या होती है, चेंज होती है। तो व्हेन वी लाइट अप द बल्ब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू अ लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। देखिए बल्ब जब ग्लो होता है तो काफी देर जब बल्ब ग्लो हो रहा होता है तो हम उसको टच करके देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ओके, तो जैसे ही बल्ब ग्लो होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू अ लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जस्ट लाइक अ टोस्टर, टोस्टर आप ब्रेड डालते हैं, फिर उसमें टोस्ट होकर बाहर निकलती है ना, तो टोस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू अ हीट एनर्जी में वो बन जाती है, तो उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है। सेम इसी तरीके से हम टीवी की, टेलीविजन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू अ, टीवी में से देखो लाइट भी आती है एंड साउंड भी आता है, दोनों है ना। तो लाइट एनर्जी, टीवी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है तो इट कन्वर्ट इनटू अ लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। आई थिंक my point is clear to you. Okay, I think you got it my point. Okay, so energy never be changed, never be created, never be destroyed. Energy always one energy convert into a another energy. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जैसे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू अ डिफरेंट फॉर्म। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब में जाएगी, लाइट एंड हीट एनर्जी में ट्रांसफर होगी, टोस्टर में होगी तो कन्वर्ट इनटू अ हीट एनर्जी, टीवी में होगी तो कन्वर्ट इनटू अ लाइट एंड साउंड एनर्जी। Okay, then after we discuss here about the circuit. Circuit क्या था, the path along with an electric current can flow is called a electric circuit. Okay, now पहेली want to draw this diagram. ठीक है, वो ये पहेली अपने फ्रेंड को ड्रॉ करके भेजना चाहती है, लेकिन क्या कोई सिंपलेस्ट वे है ड्रॉ करने का, कोई सिंपलेस्ट वे है कि भाई एक तो मैं सेल बनाऊं, बल्ब बनाऊं, ये ऑल पिन जो सेफ्टी पिन है, की का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो इट्स लिटिल बिट हार्ड। ये क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली हार्ड होता है। तो इसी की जगह पर हम मूव होते हैं किसके ऊपर, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंबल्स मींस भाई हम सिंबल कर दें कि भाई ये चीज होगी ना, दैट मींस ये होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस हियर दिस टेबल। Look at here, this table 14.1 symbols for some electric circuits components। देखिए इलेक्ट्रिक सेल को देखो, इलेक्ट्रिक सेल की ये पिक्चर इजीली ड्रॉ होगी, या सिंबल जो है वन लाइन लॉन्गर एंड वन लाइन शॉर्टर, तो ये सिंबल है किसका, इलेक्ट्रिक सेल का। अभी हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स पे। एक सिंबल वर्ड को क्लियर करना चाह रही हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ा पिक्चराइजेशन हो जाए कि व्हाई आई सेड दिस वर्ड्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक सेल, that one symbol, electric bulb, switch on position, switch off position, and battery and wire. Okay, we discuss here. First we understand what is symbol. An electric circuit consists, एक electric circuit के अंदर देखो हमें क्या दिख रहा है, one cell, one battery, one electric bulb and connecting wires and a switch। ये सब चीजों से मिलकर हमारा पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बना है। ओके, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक्चुअल डायग्राम ऑफ द बल्ब, अगर हम एक्चुअल डायग्राम बल्ब का ड्रॉ करें, बैटरी का ड्रॉ करें, स्विचेस का ड्रॉ करें, कैन बी मेड बाय यूजिंग सिंबल फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रिक। इनको हम इजी वे में सिंबल्स के थ्रू ड्रॉ करेंगे
तो देन हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग द स्टैंडर्ड सिंबल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम सिंबल्स को किस तरीके से यूज करते हैं, देखिए फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट इज सिंप्लीफाइड एंड इज इजियर टू अंडरस्टैंड। अगर हम सिंबल्स को यूज करके ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट अगर ड्रॉ करेंगे तो एक तो ड्रॉ करने में बहुत इजी होगा, ठीक है, तो सर्किट इज इजियर टू ड्रॉ। एक सर्किट क्या होगा, बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट अंडरस्टैंड इजीली, और इजीली तरीके से अंडरस्टैंड होगा, भी समझ नहीं आ रहा कहाँ पर क्या चीज कनेक्टेड है, लेकिन जब हम सिंबल्स को यूज करके पूरा सर्किट ड्रॉ करेंगे देन वी अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली हाउ दिस सर्किट वर्क और नॉट। ओके, एंड ड्रॉ तो इजी होगा ही, वही एक तो हम सेल का ये डायग्राम बनाएंगे और सेकंड सेल का जो मैंने अभी आपको शोन किया था वो पिक्चर बनाएंगे, तो इट्स इजियर टू ड्रॉ। तो जैसे आप बार बार आपके क्वेश्चन, मैं इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं कहती हूँ कि इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर यही होगा व्हाई वी यूज सिंबल्स in electric circuit, draw the electric circuit because it is easier to understand and easy to draw. You write 2 points. Okay, now we move to a electric circuit diagrams. Okay, first electric circuit diagram is electric cell. Okay, it consists of a two parallel line. इसमें कितनी parallel line होती है बेटा, two parallel line होती हैं, जिसमें से the thinner and longer line represent the positive terminal. जो पतली और थोड़ी सी long line है, it represent the positive terminal. You reminding positive and negative terminal in class 6 we understand about this. A cell has a two terminal. A cell has a two terminal. First one is positive terminal, second is negative terminal. ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो उसको शो करने के लिए हम एक पतली और लॉन्गर लाइन शो करते हैं, एंड नेगेटिव टर्मिनल को शो करने के लिए हम शॉर्टर एंड थोड़ी थिकर लाइन शो करते हैं। तो द थिकर एंड शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल एंड द थिनर लॉन्गर लाइन represent the positive terminal. I hope this point is clear to you. Now we move to a electric bulb. Electric bulb it consists a circle with a filament inside. तो ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, एक सर्किल करेंगे देन अंदर फिलामेंट ड्रॉ करेंगे, उल्टा डब्लू बनाना है, ठीक है, तो दिस वन इज फिलामेंट। आपको ध्यान है 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि बल्ब के अंदर जो ये फिलामेंट है, विच मटेरियल इज मेड अप ऑफ, ये कौन से मटेरियल का बना होता है, टंगस्टन। कौन से मटेरियल का बना होता है, टंगस्टन। तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस मटेरियल का है, टंगस्टन। व्हाई वी यूज टंगस्टन, बिकॉज टंगस्टन हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन के अंदर बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर tungsten. Okay, now connecting wires. Wires को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक सिंपल लाइन ड्रॉ करके, दे आर शोन एज अ लाइन। हम जब भी वायर्स की बात करेंगे तो एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट मींस दैट इट इज अ हियर इज अ वायर्स। ओके, नाउ वी मूव टू अ नेक्स्ट स्विच ऑन पोजीशन। स्विच ऑन पोजीशन कौन सी होगी, स्विच ऑन पोजीशन कौन सी होगी, स्विच इन ऑन पोजीशन इट इज शोन एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, टू डॉट्स बनाकर उनके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, दैट मींस इट इज अ स्विच ऑन पोजीशन। ठीक है, स्विच ऑफ पोजीशन करते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्क करना बंद कर देते हैं, और स्विच ऑन करते हैं जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, आप फैन को ऑन करते हैं तो फैन चलना स्टार्ट हो जाता है ना, वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन पोजीशन को ड्रॉ करते हैं तो वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और व्हेन वी ड्रॉ अ स्विच ऑन पोजीशन वी ड्रॉ द स्लैंटिंग लाइन, स्लाइटली स्लैंटिंग लाइन। लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, आप 3 और 4th पिक्चर में डिफरेंस कर पा रहे हो, दैट मींस फर्स्ट क्या है, स्विच ऑन पोजीशन है, एंड सेकंड पिक्चर क्या है बेटा, स्विच ऑफ पोजीशन है। स्विच ऑफ पोजीशन पे वी ड्रॉ अ स्लैंटिंग लाइन एंड स्विच ऑन पोजीशन पे वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। I hope this is clear to you. Okay, now we move to a second, next one is battery. What is the difference between battery and cell? Cell is a single one। ठीक है, जब एक सिंगल चीज की बात करते हैं तो वी यूज अ सेल, और व्हेन वी यूज अ मोर देन टू सेल, टू और मोर देन टू सेल वी यूज अ बैटरी। जब हम दो सेल को साथ में कनेक्टेड कर देते हैं देन वी यूज द टर्म बैटरी। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है। ओके, तो 1 सेकेंड, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बैटरी। और वायर तो हमने रीड कर ही लिया कि एक सिंगल लाइन, तो बैटरी, व्हाट इज बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ
two or more cell. Combination of, here is a battery definition. Combination of two or more cell is called a battery. जो combination है two or more cells का is called a battery. Okay. I hope आपको ये सब चीज समझ में आ रही होगी. Okay class, I think you understand why we use symbols here. तो symbols हम क्यों use करते हैं, and with symbols we use a particular thing, electric cell, electric bulb, switch on position and switch off position, and battery and wire. Okay, and now electric circuit in a two types. First one is open type circuit and second is closed type circuit. When switch is on, अगर switch कैसी position पे है, on position पे है, that type of electric circuit is called the closed type of electric circuit. Okay, and when switch is off position, that type of circuit is called the open circuit. Okay, many devices such as torches, transistors, toy, TV, remote controls use batteries. However, in some of these devices, electric cells are not always placed one after the other as shown in figure. Sometimes these cells are placed side by side. देखिए यहाँ पर आपको बैटरी कैसे बताइए कि भाई एक बैटरी एक सेल आगे की तरफ है और एक सेल उसके पीछे की तरफ कनेक्टेड किया हुआ है. लेकिन क्या सब जगह पर हम जो जहाँ पर भी टू या मोर देन टू सेल्स को यूज करते हैं, क्या सब जगह इसी तरीके से यूज किया जाता है? जैसे आप अपने खुद के टीवी रिमोट को देखिए, टीवी रिमोट में एक सेल के आफ्टर दूसरा सेल लगा होता है या साइड बाय साइड लगा होता है? तो हम तो मेरे घर पे जो रिमोट है उसमें साइड बाय साइड होता है, आपके घर पे जो रिमोट है आप उसमें चेक कीजिएगा. ठीक है, तो कुछ टाइम पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक सेल के बैक साइड में ही दूसरा सेल लगे. कई बार के ये सिचुएशन कैसे होती है, साइड बाय साइड भी होती है. देन हाउ द टर्मिनल ऑफ द सेल्स कनेक्टेड, तब उस टाइम पे टर्मिनल्स जो है कैसे कनेक्टेड होंगे. फर्स्ट थिंग हमने क्लास 6 में भी अंडरस्टैंड की थी, जो सेल का हैज अ टू टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल. वी ऑलवेज कनेक्टेड अ पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, देन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. जब भी हम एक कनेक्शन या पूरा सर्किट बनाते हैं तो हम हमेशा जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, एक अदर सेल का जो पॉजिटिव और ये देखो इधर पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है. अदर सेल जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे कभी भी नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव साइन को पास में नहीं रखेंगे. हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा किससे, नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. ओके, ये वाली सिचुएशन तब तो हो सकती है जब हम एक सीरीज में सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं. लेकिन जब हम साइड बाय साइड वाली सिचुएशन देखते हैं, जैसा कि हमारे टीवी रिमोट्स के अंदर या आपके रिमोट कार या कुछ भी जो भी आपके पास में है, उसमें जब साइड बाय साइड होता है तब हमें क्या कर, तब हम कैसे इसका अरेंजमेंट करते हैं, कैसे सर्किट को ड्रॉ करते हैं. लुक एट हियर दिस डायग्राम 14.3. इसमें देखिए आप दो पिक्चर देख रहे हैं, साइड बाय साइड सेल लगे हुए हैं. हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा. तो ये जो अंदर से जो स्क्वायर का नेटवर्क सिस्टम है वो इस तरीके से ड्रॉ कर लिया जाता है कि ऊपर से उसका पॉजिटिव टर्मिनल वायर के थ्रू उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता है. ओके, मे बी ऐसा हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर हो और नेगेटिव नेगेटिव नीचे हो, तब इस केस में ये फर्स्ट सिचुएशन होगी. और मे बी एक केस ऐसा होता है कि एक में एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, जैसे कि हमारे टीवी के अंदर ये इस तरीके से ही होता है कि एक तरफ मेटल कैप लगती है, एक तरफ स्प्रिंग होती है, फिर दूसरी तरफ अपोजिट साइड में मेटल कैप और अपोजिट साइड में स्प्रिंग होती है. तो वहां पर जो वायर्स का कनेक्शन है वो इस तरीके का होगा. आई थिंक यू गॉट एट माई पॉइंट. ठीक है, तो ये होता है कि हम कैसे सेल को सेल से कनेक्ट करेंगे. तो वी ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे किससे, नेगेटिव से, और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे किससे, पॉजिटिव से. देन हाउ आर द टर्मिनल ऑफ द सेल कनेक्टेड, लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस. देयर इज usually a thick wire of metal strip connecting the positive terminal of one cell of the negative terminal of the next cell. In order to help you place the cell correctly in the battery compartment, positive to negative symbols usually printed there. How can we connect the cells to prepare battery for their activity? Using cell holders. अब देखिए इसमें cell holders आते हैं. What type of cell holders? Look at here. First one is
ये आपका सेल होल्डर है। सेकंड सेल होल्डर इस टाइप के आता है, ठीक है। तो व्हाट इज सेल होल्डर? ए सेल होल्डर इज अ सिंपल डिवाइस इन व्हिच मोर देन वन सेल कैन बी प्लेस्ड प्रॉपर्ली टू फॉर्म अ बैटरी। तो ये वो चीज है जिसमें हम एक सेल से ज्यादा सेल को यूज करते हैं और उसका प्रॉपर्ली अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो देखिए ऐसा है, एक सिंपल सेल होल्डर है जिसके अंदर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन में हम सेल को प्लेस कर देते हैं। कैन बी मेड बी ए वुडन प्लैंक, जो वुडन ब्लॉक का बना हुआ होता है, और 2 आयरन स्ट्रिप इसके कॉर्नर्स पे लगी हुई होती है एंड रबर बैंड के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। Place the iron strip on a wooden band 2 ends. Place the cell in a straight line with positive terminal of one cell connected to the negative terminal of another cell. Use rubber band to hold the metal strips tightly to the cell. This kind of cell holder can be seen in a simple torch. आपको इस टाइप का जो सेल होल्डर है वो आपको सिंपली टॉर्च के अंदर दिखाई देगा। ओके, सम जो सेल होल्डर्स होते हैं वो प्लास्टिक के इस तरीके के भी बने होते हैं साइड बाय साइड के। A cell holder for holding two cells side by side can be seen in many devices. हम रिमोट में, टॉयज में, रेडियोज में इस तरीके की सिस्टम को देख सकते हैं। In this there is a battery compartment where cell can be placed side by side. The compartment has a thick wire or a metal strip that connects the positive terminal to the negative terminal of one cell, and negative terminal connect to the positive automatically when the cells are placed in it. To ensure that the cells are placed correctly, the battery compartment has the symbols plus and minus printed there. जो बैटरी है उसपे तो पॉजिटिव और माइनस सिंबल होते ही है। वैसे कौन सा होता है जिसमें ऊपर की तरफ कैप लगी हुई होती है वो कौन सा होगा? पॉजिटिव, और पीछे की तरफ प्लेन होगा वो कौन सा हो सकता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। So that's all about the cell holders. Okay. Our next topic we discuss in our next class. Okay.